کہ حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کر دی۔ پیٹرول 2 روپے 20 پیسے فی لیٹر سستا کر دیا گیا۔ پیٹرول کی نئی قیمت فی لیٹر 327 روپے 62 پیسے ہو گئی ہے۔ ڈیزل کی قیمت میں 1 روپے 50 پیسے کمی کی گئی ہے۔ ڈیزل کی فی لیٹر نئی قیمت 380 روپے 86 پیسے مقرر کی گئی ہے۔ حکومت نے نئی قیمتوں کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کی گئی ہے۔ پیٹرول 2 روپے 20 پیسے فی لیٹر سستا کر دیا گیا۔ پیٹرول کی نئی قیمت 327 روپے 62 پیسے مقرر کی گئی ہے، جبکہ ڈیزل کی قیمت میں 1.5 روپے کمی کی گئی ہے۔ ڈیزل کی فی لیٹر نئی قیمت 380 روپے 86 پیسے مقرر کی گئی ہے۔ نئے قیمتوں کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ پیر تک کے لیے یہ قیمتوں کا اطلاق کیا گیا ہے۔ حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کی ہے۔ پیٹرول 2 روپے 20 پیسے فی لیٹر سستا کر دیا گیا۔ قیمت 327 روپے 62 پیسے مقرر کی گئی ہے، جبکہ ڈیزل کی قیمت میں 1.5 روپے فی لیٹر کمی کی گئی ہے۔ ڈیزل کی نئی فی لیٹر قیمت 380 روپے 86 پیسے مقرر کی گئی ہے۔ حکومت نے نئی قیمتوں کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ پیٹرولیم ڈیلرز ایسوسی ایشن نے وفاقی وزیر پیٹرولیم کو اہم خط ارسال کیا ہے۔ خط میں کہا گیا ہے کہ مطالبات پر پیش رفت نہ ہونے پر ڈیلرز میں بے چینی بڑھ رہی ہے۔ 24 گھنٹے بعد قیمتوں میں تبدیلی سے ڈیلرز کو مالی نقصان ہو رہا ہے۔ بیورو چیف اشرف خان ہمارے ساتھ ہیں، بتائیے گا۔ جی، پیٹرولیم ڈیلر ایسوسی ایشن نے جو وفاقی وزیر پیٹرولیم کے اہم خط لکھا ہے، جس میں کہا ہے کہ حکومت کو دی گئی 2 ہفتوں کی مہلت ختم ہو گئی ہے۔ پیٹرولیم ڈیلر ایسوسی ایشن کے جو چیئرمین ہیں ملک خدابخش کا کہنا ہے کہ مطالبات پر پیش رفت نہ ہونے پر ڈیلرز میں بے چینی بڑھ گئی ہے۔ 24 گھنٹے بعد قیمتوں میں تبدیلی سے ڈیلر کو مالی نقصان ہو رہا ہے۔ ڈیلرز کے 4 مطالبات میں سے کسی پر بھی تاحال فیصلہ نہیں ہوا ہے۔ ملک بستان کا کہنا ہے کہ حکومت فوری طور پر اپنے فیصلے سے ڈیلر کو آگاہ کرے۔ وفاقی وزیر پیٹرولیم سے پیر تک واضح فیصلے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ پیر تک مطالبات پر پیش رفت نہ ہوئی تو آئندہ کے لائے عمل کا مجبوراً ہو کر اعلان کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ، آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا۔ ہم نے آج منسٹر صاحب کو ایک خط لکھ دیا ہے، اور کیونکہ بہت زیادہ پریشر تھا مجھ پہ، ہماری ایگزیکٹو کمیٹی کا اور تمام پاکستان کی ڈیلرز کا، کہ جی حکومت کو آپ نے 2 ہفتے دیے تھے، وہ 2 ہفتے پورے ہو گئے ہیں، لیکن اس میں کوئی ایسی خاص نتیجہ نہیں نکلا۔ ایک صرف کارڈ کی شکل میں جو سامنے چیز آئی ہے، وہ ہم اس سے تھوڑے مطمئن ہیں، وہ بھی پوری 0 تو نہیں ہوا، بہرحال اس کی کوئی بات نہیں، لیکن دوسرے جو ہمارے 4 مطالبات ہیں اس میں سے کوئی بات نہیں ہوئی، اور اس وقت ایک بے چینی کا عالم ہے، اور سارے ڈیلر حضرات جو ہیں اور جو پمپ مالکان ہیں اور پریشانی میں مبتلا ہیں۔ یہ جو 24 آورز کی پرائس چینجنگ ہے، اس میں بہت سارے نقصانات ہو رہے ہیں، فائنینشیل لاسز ہو رہے ہیں، اور اس مشکل میں وہ ہم پہ پریشر ڈال رہے ہیں کہ آپ نے 2 ہفتے گورنمنٹ کو دیے تھے، تو اب کیا ہوا، ہمیں جواب دیں۔ تو میں منسٹر صاحب کو خط لکھا اور یہی ان کو کہا ہے کہ جی آپ ہمیں بتائیں کہ آپ کا کیا ڈیسیجن ہے، تاکہ ہم اپنے ڈیلر صاحبان کو مطمئن کر پائیں، اور اگر خدا نخواستہ منڈے تک ہمیں یہ کوئی چیز آپ نے نہیں دی تو پھر ہم مجبور ہو جائیں گے اگلا لائحہ عمل کے لیے، اور وہ جو ہم سمجھتے ہیں کہ نہ ہمارے لیے اچھا ہوگا، نہ گورنمنٹ کے لیے اچھا ہوگا، نہ انڈسٹری کے لیے اچھا ہوگا۔ ہم آپ سے چاہتے ہیں کہ منڈے تک ہمیں جو بھی آپ کا ڈیسیجن ہے فوری طور پہ ہمیں دے دیں، تاکہ ہم اپنے ڈیلر حضرات کو مطمئن کر سکیں۔ بورڈ بیسن میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کو کھلا چیلنج۔ متاثرہ شہری سے ملزمان کا دوبارہ فون پر رابطہ۔ سٹی 21 کو ملنے والی آڈیو ریکارڈنگ میں ملزم خود کو بورڈ بیسن تھانے کا ملازم بتا رہا ہے۔ آڈیو میں واردات میں ملوث ملزمان گرفتار کرنے کے دعوے۔ موٹر سائیکل اور موبائل فون بھی جلد واپس دلوا دیے جائیں گے۔ بات کریں گے دور شہباز سے، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، کراچی کے علاقے بورڈ بیسن میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کو کھلا چیلنج دیتے ہوئے 2 روز قبل شہری کو لوٹنے والے ملزمان نے مبینہ طور پر دوبارہ اسی شہری سے فون پر رابطہ کیا۔ اچھا جی، رابطے کی جو ریکارڈنگ ہے اس سٹی 21 کو موصول ہوئی ہے، جس میں آڈیو ریکارڈنگ کے مطابق جو ہے کال کرنے والے شخص نے خود کو بورڈ بیسن تھانے کے AVCC کا انسپیکٹر عادل ظاہر کرتے ہوئے دعویٰ کیا کہ واردات میں ملوث ملزمان گرفتار کر لیے گئے، جبکہ شہری کی موٹر سائیکل برآمد ہو گئی ہے، جبکہ موبائل فون بھی جلد جو ہے
वापस दिलवा दिए जाएंगे। रिकॉर्डिंग के मुताबिक जो है शहरी से कहा गया कि मुल्जिमान के भाइयों को अदालत में पेश किया गया है और चालान फीस के नाम पर फौरी तौर पर 6,110 रुपए इजी पैसे के जरिए जो है आदिल नामी इंस्पेक्टर को भेजा। जबकि शहरी ने रकम भेजने में टाल मटोल से काम लिया तो मुबैना मुल्जिमान ने पहले गालियां दी, फिर दोबारा कॉल करके संगीन धमकियां देते हुए कहा कि पहले भी तुझसे वारदात हमने नहीं की थी, अब दोबारा भी तुझे नहीं छोड़ेंगे। अच्छा कि वाकया जो है कई संगीन सवालात को जन्म दे रहा है। अगर हम वाकई पर थोड़ा सा गौर करें कि अगर वाकई यही मुल्जिमान है तो क्या इन्हें शहरी की मुकम्मल मालूमात कैसे हासिल हुई है, और अगर ये जालसाजी है तो शहरियों के एतमाद और सिक्योरिटी के लिए एक इंतहाई तशवीशनाक सूरत हाल है। जी बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। आगे बढ़े हैं, आपको बताएं कि सिस्टम तबाह नहीं बल्कि मुआशी सरगर्मियां पहले से बेहतर हुई हैं। FPCCI के सदर आतिफ इकराम शेख का प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब। बोले 2.5 साल में एक्सपोर्ट में इजाफा हुआ। बलूचिस्तान बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के चेयरमैन बिलाल खान काकड़ कहते हैं कि बलूचिस्तान में रेकोरेक तर्ज के एक और बड़े मादनाती मनसूबे में अमरीकी सरमायाकारी मुतवक्के है। वसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट। सरमायाकारी, बरामदात और रोजगार माशी सरगर्मियां पहले से बेहतर हुई। FPCCI ने बड़ा दावा कर दिया। फेडरेशन हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब में FPCCI के सदर आतिफ इकराम शेख बोले, पिछले 2.5 साल में एक्सपोर्ट में इजाफा और कारोबार बेहतर हुआ है। मुल्क में माशी सरगर्मियां पहले से बेहतर हैं। बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट ने जो सहूलतें दी हैं उसमें जो उनकी पॉलिसीज हैं उनमें ज़मीन की अलॉटमेंट, जो कारोबारी रजिस्ट्रेशन है, लाइसेंसिंग है, टैक्स, मौलियाती मंजूरी, दीगर ज़्यादा कामों के लिए वाज़िया एक टाइम फ्रेम उन्होंने बना दिया है, एक 1 विंडो ऑपरेशन कर दिया है, जो मेरा ख्याल अभी हमारे इधर नहीं है, बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने कर दिया। इस मौके पर बलूचिस्तान बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के चेयरमैन बिलाल खान काकड़ ने कहा कि बलूचिस्तान के मादनियात के शोबे में रेकोडेक की तर्ज के एक और बड़े मंसूबे में अमरीकी सरमायाकारी मुतवक्का है। हुकूमत सरमायाकारों को हर मुमकिन सहूलत फराहम कर रही है। बलूचिस्तान की जितनी भी कुदरती वसाइल थे, जो भी हमारे स्पेशल इकोनॉमिक जोन थे और जो पोटेंशियल थे, वो एक सही अंदाज में पाकिस्तान के इन्वेस्टर्स तक पहुंचानी है। FPCCI रहनुमाओं का कहना था कि बलूचिस्तान में मादनियात, सयाहत, फिशरीज और दीगर शोबों में सरमायाकारी के वसी मौके मौजूद हैं। उनके मुताबिक बुनियादी सहूलियात और सिक्योरिटी से मुताबिक चैलेंजेस पर काबू पाने के लिए हुकूमत इकदामात कर रही है, जबकि मादनी वसाइल की वैल्यू एडिशन से बरामदात में नुमाया इजाफा मुमकिन है। कैमरामैन अमजद अली के साथ वसीम इफ्तिखार, सिटी 21। पाकिस्तान और आसियान ममालिक के दरमियान तजारती ताल्लुकात को नई रफ्तार देने का अज़्म। 59वां आसियान डे, तिजारत, सरमायाकारी और शराकत दारी के फ़रोग़ पर इत्तेफाक। FPCCI सदर कहते हैं कि पाकिस्तान की कारोबार बिरादरी आसियान ममालिक के साथ इक़्तिसादी रवाबित को मज़ीद मुस्तहकम करने के लिए पुरअज़्म है। वसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट। इक़्तिसादी सिफारतकारी को फ़रोग़। FPCCI में आसियान डे की तकरीब, जिसमें इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलिपीन, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम और मलेशिया के कौंसल जनरल्स और सिफारती नुमाइंदों और बिजनेस कम्युनिटी ने शिरकत की। FPCCI के सदर आतिफ इकराम शेख का कहना था कि आसियान खत्ता आलमी मईशत का एक अहम सतून है और पाकिस्तान के लिए इन ममालिक के साथ तिजारत और सरमायाकारी के बेशुमार मौके मौजूद हैं। सीनियर नायब सदर साकिब फयाज मंगू ने पाकिस्तान और आसियान ममालिक दरमियान बिजनेस टू बिजनेस रवाबित, फ्री ट्रेड, मुश्तरका मंसूबों और तिजारती वफूद के तबादले को वक्त की अहम जरूरत करार दिया। इस वक्त हम जो है वो इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल ज़्यादातर हम या चाइना से, वो भी डायलॉग पार्टनर है आसियान कंट्रीज़ का, और या दूसरे जो आसियान मेंबर्स हैं, मेंबर कंट्री से हम लोग खास तौर पे इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल इंपोर्ट कर रहे हैं। और इसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि जब इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल हमारा जो है वो अगर इकोनॉमिकल प्राइस में होगा तो हमारी लाजमी बात है कि हमारी एक्सपोर्ट भी बढ़ेगी। तो इसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है और जब हम उनसे इम्पोर्ट कर रहे हैं तो फिर हम उधर एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। तकरीब के इख्तिताम पर सिफारतकारों, वज़ारत ख़ारजा के हुक्काम और कारोबारी शख्सियात की मौजूदगी में 59वें आसियान डे का केक भी काटा गया। कैमरामैन अमजद अली के साथ वसीम इफ्तिखार, सिटी 21। हुकूमत से मुज़ाकरात बेसूद। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने आज से मुल्क की गैर मुअय्यना मुद्दत तक हड़ताल का ऐलान कर दिया। गैर ज़रूरी जुर्मानों का खात्मा, गाड़ियाँ जब्त करने के कानून में तब्दीली समेत दीगर मुतालबात शामिल हैं। हुकूमत और ट्रांसपोर्टर्स के दरमियान मुज़ाकरात का अगला दौर पीर को होगा। अशरफ खान की रिपोर्ट। हुकूमत से गुड ट्रांसपोर्टर्स के मुज़ाकरात नाकाम। 8 अगस्त से मुल्क गिर गैर मुअय्यना मुद्दत तक
हड़ताल का ऐलान, तालबात की मंजूरी तक हड़ताल जारी रखने का इंदिया। ऑल पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्टर ओनर्स एसोसिएशन के सदर मोहम्मद उवैस चौधरी का कहना है कि मुल्क भर में माल बरदार गाड़ियां सड़कों पर नहीं चलेंगी जब तक हमारे मुतालबात तस्लीम नहीं किए जाते, हड़ताल खत्म नहीं की जाएगी। हमने गवर्नमेंट को अपने मुतालबात बता दिए हैं, उनसे दरखास्त की है कि हमारे जायज मुतालबात को तस्लीम किया जाए। हमारी आज की मीटिंग बगैर किसी नतीजे के खत्म हो गई है, मुज़ाकरात नाकाम हो गए हैं। हड़ताल की कॉल 8 अगस्त को फाइनल है। पूरे पाकिस्तान में गुड्स ट्रांसपोर्टर कल के दिन अपना कारोबार बंद कर देंगे और हमारी तमाम गाड़ियां खड़ी होंगी। हमारी ये हड़ताल गैर मुइना मुद्दत तक जारी रहेगी। जब तक हमारे मुतालबात तस्लीम नहीं हो जाते उस वक्त तक ये हड़ताल जारी रहेगी। ऑल पाकिस्तान गुड ट्रांसपोर्टर इत्तेहाद के सदर मलिक शहजाद ऐवान के मुताबिक पीर को दोबारा बातचीत होगी। अगले मुज़ाकरात में पेट्रोलियम, खजाना और पोर्ट एंड शिपिंग के नुमाइंदे भी शरीक होंगे। नाजरीन, हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में मामूली कमी तो कर दी, लेकिन अवाम को इसका रिलीफ फ़ायदा ताहाल नहीं मिल सका। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किराए बरकरार हैं, जबकि बाज़ रूट्स पर मनमाने इजाफे किराए वसूल किए जा रहे हैं। मज़ीद निमशा इस्माइल की रिपोर्ट में। पेट्रोल सस्ता हुआ, डीजल की कीमत भी कम हुई, मगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किरायों में कमी ना आ सकी। हुकूमती रिलीफ आखिर आवाम तक कब पहुंचेगा? शहरी सवाल करने लगे। हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में 3 रुपए 19 पैसे जबकि हाई स्पीड डीजल की कीमत में 1 रुपए 50 पैसे फी लीटर कमी कर दी। ताहम पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किराए ताहाल बरकरार है। बस स्टॉप्स पर ट्रांसपोर्ट के मुंतजर मुसाफिर भी किरायों में कमी के मुंतजर हैं। शहरियों का कहना है कि ईंधन की कीमत कम होने के बावजूद बाज़ रूट्स पर इजाफी किराए वसूल किए जा रहे हैं। शहरियों के मुताबिक बाज़ ड्राइवर्स की जानिब से कभी 10 तो कभी 20 रुपए इजाफी वसूल किए जाते हैं, जिससे रोजाना सफर करने वाले अफराद पर मजीद माली बोझ पड़ रहा है। ये जो किराया ना और ऊपर बढ़ जाते हैं, ये इतना बढ़ जाते हैं जो आदमी जो है अब क्या बोलूं मैं, बोलने का लायक नहीं हो, इसलिए कि महंगाई इतनी ज्यादा हो गई है, आदमी रोटी खाए या वो करे। मुसाफिरों का मुतालबा है कि हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के साथ साथ पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किरायों में भी कमी यकीनी बनाए। मनमाने किराए वसूल करने वाले ड्राइवर्स और ट्रांसपोर्टर्स के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। किराया वही है जो चल रहा है, किराया वही जो चल रहा है। गरीबों को बड़ा नुकसान है, ज़्यादा ले रहे हैं, वाकई में ज़्यादा ले रहे हैं। यहाँ का 30 होता है, ये लोग लेते हैं 50 रुपये लेते हैं। ये लोग किराया डबल लेते हैं हम लोगों से। हम लोग गरीब लोग हैं, कहाँ जाएंगे हम लोग? पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के बावजूद पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किरायों में कोई तब्दीली न होने से शहरियों में तशवीश पाई जाती है। मुसाफिरों ने मुतालबा किया है कि किरायों पर मौसर निगरानी की जाए और खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। कैमरामैन अजलान के साथ रिमशा इस्माइल, सिटी 21। आगे बढ़े, आपको बताएं कि जश्न आज़ादी की आमद है और बहादुराबाद का आज़ादी बाजार पूरे रौनक के साथ सज गया है। कौमी परचम, झंडियाँ, बैजेस, चूड़ियाँ और दीगर सजावटी अशिया खरीदने के लिए शहरियों की बड़ी तादाद यहाँ का रुख करती है। रिमशा इस्माइल की रिपोर्ट। जश्न आज़ादी की आमद बहादुराबाद का आज़ादी बाजार सब्ज हिलाली परचमों से जगमगा उठा। 14 अगस्त की आमद के साथ ही शहर कायद में जश्न आज़ादी की तैयारियां उरूज पर पहुंच गई हैं। बहादुराबाद में लगने वाला आज़ादी बाजार कौमी रंगों में रंग गया। परचम, झंडिया, बैजेस, चूड़ियां, टी शर्ट्स, कैप्स और बच्चों के लिए मुख्तलिफ ड्रेसेस की खरीदारी जोरों शोर से जारी है। दुकानदारों के मुताबिक शाम ढलते ही खरीदारों का रश मजीद बढ़ जाता है और यौम आज़ादी करीब आते ही कारोबार में भी इजाफा हो जाता है। रश तो माशाल्लाह बहुत रात में होता है, बहुत सारा रश होता है माशाल्लाह। और ये कि तकरीबन हमारे पास सारी चीज़ें मौजूद हैं। हमने इसको अरेंज किया अलग अलग मार्केटों से, लियाकताबाद सुपर मार्केट से भी, लाइट हाउस, गोल्डन मार्केट, तो 3-4 मार्केटों से इसका सामान बड़ी मुश्किल से हम इसकी वैरायटी अरेंज करते हैं। फिर इसको हम एक तरीके से हमने मेला लगाया हुआ बहादुराबाद के, तो रात में जब आप आए तो इधर जो है ना एक मेले का समा होता है, लोग आते हैं फैमिलीज के साथ। बाजार में आने वाले शहरियों का कहना है कि यौम आज़ादी सिर्फ एक जश्न नहीं बल्कि अपने वतन से मोहब्बत और इसके लिए दी जाने वाली कुर्बानियों को याद करने का दिन भी है। और 14 अगस्त को हम इस अंदाज से बनाते हैं कि जिससे हमारी नस्लों को पता लगे कि 14 अगस्त है क्या। 14 अगस्त एक तजदीद अहद वफा है। 14 अगस्त नाचने गाने का काम नहीं। 14 अगस्त अपने बच्चों को तालीम और परवरिश देने का दिन है। उनको तालीम में ये बताना है ये फ्लैग है जिसके खातिर हमने माइग्रेशन की, अपने बुजुर्गों की जानों की कुर्बानियाँ दी। मेरे बुजुर्गों ने कुर्बानी दी, आज पाकिस्तान तामीर हो गया। दुकानदार पुर उम्मीद हैं कि आने वाले दिनों में खरीदारी अपने उरूज पर पहुंच जाएगी, जबकि शहरी भरपूर जोशो जज्बे के साथ आज़ादी की तैयारियों में मसरूफ हैं। कैमरामैन इमरान के साथ रिमशा इस्माइल, सिटी 21।
आगे बढ़ें, आपको बताएं कि मीर रजा केस में अहम पेशरफ्त सामने आई है। आज कब्र कुशाई ना होने पर पुराना मेडिकल बोर्ड दोबारा बना दिया गया। मीर रजा के वालिद के हमरा हमारे नुमाइंदे शाहरुख शाह मौजूद हैं। शाहरुख, बताइएगा। जी बिल्कुल, देखें जो मीर रज़ा जो है वो एक तरीके से अगर मैं कहूँ तो मुबैना तौर पर कत्ल जो केस है उसमें एक अहम पेशरफ जो है वो सामने आई है, जो कि आज कब्र कुशाई जो है वो होनी थी, जो कि नहीं हो सकी। उसके बाद जो मेडिकल बोर्ड में जो प्रिकॉशंस थे, जो कि एतराज़ात थे, जिसमें घर वालों को मीर रज़ा के उसकी बिना पे जो है वो नया बोर्ड जो है वो मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया है। उसमें जो है वो डॉक्टर्स और माहिरीन जो है वो शामिल किए गए हैं। इस वक्त मैं आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ मीर रज़ा के घर से, और उनके जो वालिद हैं वो भी हमारे साथ जो है वो इस वक्त मौजूद हैं। उनसे हम बात कर लेते हैं। ये कैंप लगा हुआ है, लोगों के आने का सिलसिला भी जो है वो इस वक्त जो है वो जारी है। हम इनसे जो है वो बात कर लेते हैं वालिद साहब से। सर बताइएगा, मेडिकल बोर्ड नया तश्कील दे दिया गया है, क्या कहेंगे, सही है? अब कब्र कुशाई से कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी आप लोगों को? देखिए जी, सबसे पहले तो मैं आपके तवज्जो से, आपके चैनल के तवज्जो से तमाम मीडिया वालों का बहुत शुक्रिया अदा करूंगा कि जिस तरह सुबह इन्होंने हमारा साथ दिया, और जो रात में हुआ कि एक रिपोर्ट दिन में कोर्ट इशू करता है और रात के अंधेरे में एक हैदराबाद से लेटर इशू होता है, उसके मेडिकल बोर्ड को चेंज किया जाता है, और सुबह भी एक नया लेटर इशू कर देते हैं तो उसको मर्ज करने के लिए। तो हमें तो वो एक्सेप्टेबल नहीं था। हमें जो कोर्ट से ऑर्डर मिला था उसके मुताबिक जो टीम बनाई गई थी, हम उस पर चल रहे थे। तो इसमें बहुत सारे सवाल पैदा हो जाते हैं कि क्यों किया था। बहरहाल नाउ हम तमाम मीडिया वालों के प्रेशर की वजह से शायद सेम बोर्ड बन गया। कल मेरे सुबह इसकी दोबारा से कब्र कुशाई होगी, तो लेट्स सी इंशाल्लाह। हमारे देखें, हम जस्टिस और अपने बच्चे को जो बोला जा रहा है उसकी वजह से हम तशद्दुद की बात कर रहे हैं, उसके साथ उसको पीछे से गोली मारी गई है। अब लेट्स सी कि कल इंशाल्लाह ये होगा। इस बोर्ड के साथ हमारा इत्मीनान है और कोशिश है कि कल ये पॉजिटिवली रात भर कुछ ऐसा ना हो, कोई और दोबारा से कोई और लेटर ना निकल आए। तो कल खैर व खैरियत से इंशाल्लाह अल्लाह पाक ने चाहा तो बच्चे की कब्र खुशाई होगी। ये हमारे लिए बहुत, आज भी हम सारा दिन इस पे सफ़र करते रहे, अब आज फिर पूरी रात और कल का पूरा दिन हमारे लिए ट्रॉमा है। देखिए, हम एक बार उस बच्चे को वो बहुत तकलीफ़ में रहा, आज फिर उसको हम सुबह तकलीफ़ देंगे। तो बस अल्लाह पाक को उसके मग़फ़िरत फरमाए, सब्र भी दे। और इस वक्त हमारे साथ मीर रज़ा के जो है वो फादर मौजूद थे। उनका ये कहना था कि जो नया बोर्ड तश्कील दिया गया है उस पर कोई एतराज़ात नहीं। पहले जो बोर्ड था वो इसी पे जो है वो इसी डॉक्टर्स पे और माहिरीन पे जो है वो तश्कील दिया गया था, मगर उसमें जो है वो रद्द बदल के बायस इन्होंने एतराज़ात उठाए थे। उसके बाद कल जो है वो जब कब्र कुशाई होगी तो इनके जो एतराज़ात हैं वो अब ख़त्म हो चुके हैं नए बोर्ड की नोटिफिकेशन आने के बाद से, और कल मीर रज़ा की जो है वो कब्र कुशाई भी होगी। जी।